Okay. This is through diffusion. Diffusion के through जा रहे हैं due to the concentration gradient. But due to the presence of this immobile ions at the center, there is an electric field generated. और इसको हम लोग बैरियर एनर्जी बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल और बैरियर एनर्जी. Barrier. What is the role of this barrier? It avoids further diffusion. That means if you would like to cause the diffusion again, तुमको ये वाला energy cross करना पड़ेगा. Only if you could cross this energy by some external supply, then you can make the electrons and the holes again move to the different sides. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि before the barrier is formed, इलेक्ट्रॉन तो डिफ्यूज कर रहा है, होल्स भी डिफ्यूज कर रहा है, तो दैट कैन गिव यू अ करंट. बट स्टिल इन द वोल्ट मीटर तुम लोग अगर कोई किसी ने कोई सप्लाई नहीं दिया, स्टिल इफ यू एसोसिएट अ वोल्ट मीटर, तो इट शुड डिटेक्ट सम करंट मूवमेंट, बट करंट मूवमेंट नहीं डिटेक्ट करता. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट द साइड्स. जो मेटल सेमीकंडक्टर का जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, contact potential at the semiconductor sites, it actually avoids any sort of current to be generated, to be shown in the voltmeter. ठीक है, तो मैं अगर accepted impurity के बारे में if you apply, तो it should be like this. This is the accepted concentration of acceptors. ठीक है, ठीक है ना. अच्छा, ड्यू टू दिस एक्सेप्टेड आयन जो नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, so this negative charge, they create something called space charge. Maybe space charge, maybe space. If I plot space charge, so इसका शेप कुछ ऐसे होगा. This is the negative. This is the right. Okay. So concentration of holes ऐसे होगा. Concentration of holes will be maximum here, यहाँ पे आगे, and this is the concentration of holes and electron, and this corresponds to space charge. नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सारा कुछ हो रहा है डिप्रेशन रीजन से. कम. Now another aspect, very important aspect to the formula to this JPN is
फर्मी लेवल, ठीक है, फर्मी लेवल। एक नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में you have the conduction band and you have the valence band without the steam। यहाँ पे फॉर्मूला लेवल कहाँ होता है? एकदम सेंटर पे। पी टाइप में कैसे हो जाता है? इट गोज टू ऊपर टुवर्ड्स द पी टाइप में। पी टाइप में कैसे होता है? पी टाइप में फॉर्मूला में comes close to the valence band because holes involved है ना, holes involved, so P type shifts and comes towards ये हो गया तुम्हारा, मैं इसको बोल रहा हूँ EFP, फॉर्मूला लेवल सफिक्स P। और उसी तरह से N वाला कहाँ होगा? towards the conduction band EFN, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, when we are having a p-n junction, तो क्या होता है? This formula it tries to attain an equilibrium। इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? द EFP is now equal to EFN। दोनों एक ही स्टेट में आया। इनिशियली क्या था? इनिशियली बिफोर मैं अगर यहाँ पे करूँ तो इट वाज अ कंडक्शन बैंड, पी साइड में कहाँ बना है? EFP यहाँ पे है ना, और एन साइड में कहाँ बना है? P N। अब मैं दोनों को पंच कर रहा हूँ, तो this two should come at the same level। EFN should be equal to EFP। इसलिए क्या होता है कि मेरा becomes something like this। ठीक है, this is conduction band of the P side, this is valence band of the P side, this is conduction band of the N side, this is valence band। बट दोनों का अभी फॉर्मूला लेवल हम लोगों ने सेम लेवल पे हम लोगों ने मिला दिया।
we have not applied any sort of bias. So ये जो difference, ये जो shift हुआ, नीचे आना पड़ा ना, दोनों को आने के लिए the band had to be moved. So what is the amount of shift that has taken place? This shift, right? This is the shift. What is this shift? This is actually the barrier. ठीक है, तो टनल डायोड्स में क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन टनल डायोड्स, वी इंक्रीज द डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से क्या होता है? दिस विड्थ, इसको लेट्स टेक इट एज W becomes very less, बहुत छोटा होता है, छोटा होके मान लो 10 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर रेंज में चले जाए. So this W now it is acting like an potential barrier and which allows tunneling of electrons. So even if there is a barrier, है ना, मतलब हम लोगों ने क्या देखा, it avoids further diffusion. But what if the barrier width is very small? If we make the width very small, so it may avoid diffusion. It is okay, but instead of diffusion, the charge carrier starts to tunnel. Quantum mechanical phenomena start with just by reducing the width. अब इसको ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, जस्ट आस्क मी, बिकॉज नाउ आई विल गो टू द IV पार्ट में जाऊंगा. ये वाला पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अच्छा, यहाँ पे बायसिंग करने क्या होगा? हम लोग जो बोलते हैं ना फॉरवर्ड बायस क्या, रिवर्स बायस क्या, व्हाट इज दैट? फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं. हाँ, फॉरवर्ड बायस मतलब वी एक्चुअली P साइड के साथ, दिस इज अ फॉरवर्ड बायस, बड़ा हुआ, एंड इंस्टेड ऑफ दैट दिस इज अ, सो फॉरवर्ड बायस करना मतलब फॉरवर्ड बायस करना मतलब वी आर रिड्यूसिंग दिस EB, जो बैरियर है EB indicates that EB, which is actually equal to before biasing it was like this, before any sort of forward biasing it was like this. फिर हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, मान लो 20 वोल्ट्स यहाँ पे, ठीक है. व्हाट विल हैपन? EB विल बी नाउ EB माइनस, बराबर, ठीक है. तो किससे क्या होगा? My EB will go down. उसी तरह से if I do reverse biasing, if I perform reverse biasing RB, then EB will go up.
biasing, it will be now EE, EB plus V. तो इसका इम्पैक्ट इस प्लॉट में कैसा होगा? रिवर्स फॉरवर्ड बायस के कारण माय प्लॉट विल बी, ये और कम हो जाएगा। दिस इज द forward biasing and दिस इज रिवर्स बायस। इसमें एक में भी बढ़ रहा है, एक में भी घट रहा है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। दिस वाज द इनिशियल केस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, होल्स हैं, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, सो दे एक्चुअली गो अप एंड डाउन दिस, दे फॉलो दिस पाथ। डिफ्यूजन का जो पाथ होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अप एंड डाउन। यहाँ पे सिंस द विड्थ डिक्रीजेस, सो डिफ्यूजन बिकम्स इजियर विद द फॉरवर्ड बायस। ओके, सो टनल डायोड्स में हम लोग क्या करते हैं, ये जो विड्थ को है, दिस विड्थ, ऑल्दो इट इज इन द फॉरवर्ड बायस स्टेट, दिस विड्थ इज डिप्लीशन रीजन है। डोपिंग इतना हम लोग हायर करेंगे, उतना मेरा विड्थ कम हो जाएगा। ठीक है, विड्थ कम होने से क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डिफ्यूजन टनलिंग विल स्टार्ट। तब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ये होल्स यहाँ पे है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, दे विल नाउ टनल। ये तुम लोग बात कम करो,
They will not tunnel. What is the tunneling probability? Exponential minus 2 kappa A. What is A? A is the diffusion rate. And W goes. A is equal to W. ठीक है? So अच्छा नॉर्मल किसी भी डायोड का मैं अगर IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूँ, any diode, any IV characteristics. So this is how. Please don't talk. Please don't talk. बात करो. So this is how. Okay, this is I. So this is the reverse bias. And इस साइड में forward bias. ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है I IS exponential it is a constant, material constant, which is basically 2 for silicon and it is equal to 1 for germanium. K is the Boltzmann constant. Now, interesting thing is this one, IS. IS is the saturation current. Saturation current भी बोलते हैं, लीकेज करंट भी बोलते हैं. So this is the IS. And it occurs due to minority gains. ठीक है. अच्छा, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल बोलूँगा. मैं फिर टनल डायोड का, यहाँ पर एक्चुअली देयर इज अ प्रोसेस टेक्स प्लेस एट दिस पॉइंट. This is called breakdown. Breakdown. Capital B से लिखिए. Breakdown होता है यहाँ पे. Breakdown, or if you compare the tunnel diode, this is occurring at reverse bias. लेकिन तुम अगर tunnel diode का characteristics अगर देखो, तो tunnel diode characteristics ऐसे होता है. Not like this. ठीक है, this is a normal diode.
This is a tunnel now. It starts to behave like a normal diode from this point. So the valley point, VV, stands for valley. Post valley point, it starts to behave like a normal diode. लेकिन उससे पहले तक, especially if you start the IN, if you start from zero, it first reaches a so the VV peak point, and there is corresponding to the PP there is an IP. Interesting thing is, यहाँ पे if I take slope, इसका मैं अगर slope ठीक है, तो क्या होगा? That will give me my AC resistance is dV by di. जो मैं बात कर रहा था, है ना? So this is positive. ठीक है ना? जो मैंने बात किया था, लेकिन इस पॉइंट में खास करके फिर लोग ये जो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज द रीजन ऑफ NDR, नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, बिकॉज हियर योर RDC RAC, that is dV by di. This is negative. Okay, so the property of the tunnel diode है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वाले रेजिस्टेंस, इस रीजन में इस्तेमाल करते हैं. So this is actually the high oscillations. ठीक है, ट्रैवल मैंने तो आज 2 से फिर से क्लास है ना, कंटिन्यूस.